ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁੰਗੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਦੋ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਬੁੰਗੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਜੇ ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਚਲੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ ਤੇ 84 ਕਦਮ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ 84 ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 84 ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਨਿਮਰਤਾ ਤਹਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਿਓ। ਫਿਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਪੂਰਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਬ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਨੇ 4 ਕੂਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਲੈ ਬੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਲੈ ਬੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪ ਨੇ 4 ਕੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੇਲ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਧਵੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਰੋਖੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਬਾਰੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਧਵੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੂੰਡਿਆ ਹੈ, ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਰਦੀ ਅੰਦਰ ਪਾਲਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਆਏ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਪਸੀਨਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਪਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਪਸੀਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਐਸੀ ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨੀਂਹ ਇਸ ਦੀ ਰਖਵਾਵਣ ਲਈ ਆਪ ਟੁਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਿਖਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਚਨ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ 1000 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਮਾਰਨੀ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾ, ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਖਤ, ਸੇਵ ਚਵਰ ਜੋ ਹੈ ਚੁਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਸਤਕ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਨੀ ਕਿਦਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਬਲਵੰਡ ਤਥੈ ਸਤੈ ਡੂਮਣੇ ਆਖੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਖੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਖੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਖੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜੇ ਸਾਖੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਇਸਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਲਾਸ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਭਰੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਲਾਸ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ, ਜਿਤਨੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਆਏ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਖੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਅਜੀਬ, ਇਤਨਾ ਬਿਲਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਖੀ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੋ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਰਾਗੀ ਹਨ, ਐਸੀ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਰਾਗ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੋ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਬਿਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਠੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਆਖੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 4 ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉਂ ਸੁਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਭਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
खासकर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने, बूटे शाह ने, सोन लाल ने, कि आप गुरु अर्जन पिता टुर के गए लाहौर, मियाँ मीर नूं कहंदे ने ऐसा दरबार साहब बना रहा हाँ, हरमंदर बना रहा हाँ, नी तुसां रखनी है। उत्थे फिर जो कौतुक होया वो मैं आप नूं सुनाना। मैं जान के श्री दरबार साहब दा जो मजमून है दो हिस्से च रखे है, इस करके पहला महिमा पता लग जाए, फिर दरबार साहब दी जो दिनचर्या है अमृत वेले तो लैके दरबार साहब दे अंदर जो कुछ हुंदा है, इंज समझ लो जिवें एक घड़ी सामने चल रही है, हर इंसान दे अंदर हुण साबित हो गया एक बायोलॉजिकल वाच है। हर इंसान अंदर एक घड़ी है। तुसी कई बारी देखिया होएगा शाम उदास है, हुण तुहाडे वास्ते ते नहीं ना, शाम हमेशा उदास होएगी। तुसां देखिया होएगा अमृत वेले उत्साह है, दोपहर वेले तुसी आप महसूस करदे हो जिवें कोई सिखर ते सूरज चढ़न तो बाद तुहाडा अपना ही मन करदा है हुण जिथे बैठा उत्थे ही बैठ जावां। ये धन गुरु अर्जन पिता जिन्हां ने श्री हरमंदर साहिब दे अंदर एक बायोलॉजिकल वाच ला दी। जो मेरे शरीर दे अंदर हो रहा है वही श्री दरबार साहब दे अंदर हो रहा है। दरबार साहब दी सारी दिनचर्या जो अमृत वेले तो लैके रात दे सौण वेले तक मेरे शरीर नाल बीतनी है, कि हुक्म ते आप दा ही है ना, हरमंदर ए शरीर है। जो शरीर के अंदर बीत रही है वही हरमंदर अंदर आपने वर्त के, ताकि हर सिख रोज अपने शरीर के अंदरों वाहिगुरु दा दीदार कर सके, भटके नहीं। इसलिए मैं दो हिस्सों में जान के वंडिया कि अज सिर्फ महिमा पता लग जाए जो अंदर गुरु अर्जन साहब ने साडे लई रहमत की है, वो भी असी बैठ के विचार के, ताकि पता लग जाए कि किसी थां ते जान की लोड़ नहीं, अपने आप अंदर दी घड़ी मैनू एक सुर कर देवेगी। फिर किसी वेले किथे थां कोई बैठा होवे उसनू कदी काली या उसके अंदर भटकना नेड़े नहीं आएगी। इंज लिखिया साडे इतिहास अंदर कि आप गए ने लाहौर। मियाँ मीर बारे बहुता मैनू कहने की लोड़ नहीं है कि मियाँ मीर उस पदवी ते पुजा इंसान है जिस दे बारे आप जहांगीर वर्गा लिखदा है या उस वेले दियां किताबां लिखदियां ने कि रोज वाहिगुरु दा दीदार करके आउंदा सी, हुजरे च बैठदा सी, अते इत्थों तक लिखिया है कि आप नूं किसी शाह दी, किसी बादशाह दी, किसी अमीरजादे दी, किसी शहजादे दी कदी उन्होंने परवाह नहीं सी की। एक उन्हां दा उंज लिखिया आप जहांगीर ने है कि मैं चला गया मियाँ मीर दे दरवाजे ते, जाके दरवाजा खटखटाया अते बड़ी उच्ची किया जहांगीर आया है। दरवाजा नहीं ने खोलिया। मैं थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खटकाया, मैं क्या सलीम आया है। फिर भी दरवाजा नहीं ने खोलिया। जहांगीर दा नाम सलीम सी। मैं फिर भी दरवाजा नहीं खोलिया अते उन्हें नहीं खोलिया। तीजी बारी मैं जोर दा खड़का के गया, शेखू आया है, क्योंकि आपको पता है ना ये बचपन का नाम शेखू सी। शेखू आया, बच्चा थोड़े दरबार से आया। दरवाजा खोल दिता ते आखदे ने पलिया लोका तैनू भी कम है मैनू भी कम है, वक्त जाया ना कर। खिड़की बंद की थी, कुंडी लाई, फिर अंदर बैठ के किस उच्ची अवस्था अंदर ही विचरदे सन। एक होर बड़ा वादा सी मियाँ मीर जी दा, अपने हुजरे विच जिथे बैठते सन कोई कालीन नहीं, कोई दरी नहीं, कोई चादर नहीं, पाटे हुए टाट हन जो विछे होंदे सन। ये मैं तां सुना लगा कि ना मेरा बड़ा गुरु अर्जन है, कितने बड़े छोटे बादशाह हन। ये गुरु अर्जन साहब चले गए, पाटे हुए टाट विछे हुए सन। गुरु अर्जन साहब आराम नाल जाके उत्थे बैठ गए। इतने नूं की होया, अकबर आ गया। अकबर ने पाटे टाट देखे ते जरा को ख्याल आया, हुण अपने कोल गया सी, मियाँ मीर दी जात दा सी, चुप करके खड़ा रहा। खड़े हुए दो गल्लां करके वापस आ गया ते मियाँ मीर जी कहंदे ने गुरु अर्जन साहिब नूं जिस वेले वो टाट ते बैठे हुए हन, कहंदे ने गुरु अर्जन साहिब तुहाडी उम्मत राज करेगी। बड़ी हैरानी की गल है, गुरु अर्जन सिर्फ टाट ते बैठा है, अकबर खड़े खड़े चला गया है। मियाँ मीर उस वेले कहंदा है गुरु अर्जन तुहाडी उम्मत राज करेगी। जिस दे गुरु विच इतनी निम्रता है, उस दे सिख विच आई हुई निम्रता पंजाब की हिंदुस्तान दा राज उस दे कोल होएगा। निम्रता राज लियाएगी,
हंकार खो के ले गया। निम्रता होएगी तो सब कुछ है, हंकार होएगा तो कुछ भी नहीं। आपने आख्या तुसी अमृतसर आओ, मियाँ मीर जी आए, नी रखी, 4 इट्टा रखियां ने चारों पासे, एक विचकार इट रख दी होर। ते गुरु अर्जन साहब पुछ बैठे, ये क्यों रख दे पियो, 4 दिशा में चिट रखी जाती, 5वीं विचकार क्यों रख दे हो? कहन लगे ये मक्का है, मेरा ख्याल है इस तो वड्डी कोई दूजे धर्म वाला दूजे धर्म नूं ये ना सत्कार नहीं दे सकता। फिर साबित भी हो गया कि हाजी ने तैयार किया है चौर, किस मेहनत नाल 2 बनाए सू, एक मक्के देता सू, दूजा भाई हीरा सिंह जी रागी नूं कहन लगा मेरा अपना मन ही करदा है कि मैं श्री दरबार साहब जाके चंदन दियां तारां तो कढ़िया, चंदन दी लकड़ी दियां तारां बना के कढ़िया चौर भेंट करा। ये श्री हरमंदिर साहब दी महिमा है, सब लई है, हर लई है, हरी लई है, हर लई भी है, हरी नूं पावन लई भी है। इस करके एक बड़ा बड़ा शायर होया मुसलमाना दा, जफर अली जफर, उसने एक कहा सी कि हरमंदिर की बुनियाद की ईंट दे रही है गवाही कि कभी अहले मजाब में दोस्ती मुस्कुराई थी। हरमंदिर की बुनियाद की ईंट दे रही है गवाही कि कभी अहले मजाब में दोस्ती मुस्कुराई थी। हुण ते नाल लगदा मस्जिद चंगी नहीं लगदी, नाल लगदा गुरुद्वारा अच्छा नहीं लगदा, सिर्फ श्री हरमंदिर है जिसकी बुनियाद पे दसदी है कि धर्मां च दोस्ती मुस्कुरा भी सकती है। वाहिगुरू जी का खालसा। तमाशे अखीं वेख न रजियां, बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजियां, बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजियां, अखी वेख न रजियां, अखी वेख न रजियां, तमाशे अखी वेख न रजियां, अखी वेख न रजियां, उस्तत निंदा कान सुन, उस्तत निंदा कान सुन, रोवण कै हासे, रोवण ते हासे, बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजियां,
अखी वेख न रजिया बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजिया अखी वेख न रजिया सादी जीभ ना रजिया कर भोग बिलासे सादी जीभ ना रजिया भोग बिलासे नक ना रजा वासले दुर्गंध सुबासे नक न रजा वासले दुर्गंध सुबासे बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजिया बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजिया अखी वेख न रजिया बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजिया अखी वेख न रजिया रज न कोई जीविया कूड़े भरवासे रज न कोई जीविया 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 रज न कोई जीविया कूड़े भरवासे पीर मुरीदा पीर हड़ी सच्ची रह रासे पीर मुरीदा पीर मुरीदा पीर हड़ी पीर मुरीदा पीर हड़ी सच्ची रह रासे बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजिया बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजिया अखी वेख न रजिया बहु रंग तमाशे
रजियां बहु रंग तमाशे पुस्तत निंदा कन सुन रोवण तैसे सादी जीवन रजियां कर भोग बिलास नक न रजा वासल दुर्गंध सुबासे रज न कोई जीव्या जीव्या रज न कोई जीव्या कूड़े परवस पीर मुरीदा मेरे मुरीदा पीर मुरीदा पिरहड़ी सच्ची रहे रस सच्ची रहे रस अखी बाजों वेखना अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना पैरा बाजों चलना विण हथा करना जिभे बाजों बोलना जिभे बाजों बोलना यो जीवत मरना नानक हुक्म पछाण के तो खसमे मिलना तो खसमे मिलना तो खसमे मिलना बहु रंग तमाशे अखी वेखना रजियां बहु रंग तमाशे अखी वेखना रजियां पीर मुरीदा पिरहड़ी सच्ची रह रस पीर मुरीदा पीर मुरीदा पीर मुरीदा पीर मुरीदा पिरहड़ी पीर मुरीदा पीर मुरीदा पिरहड़ी सच्ची रह रस बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजिया अखी वेख न रजिया बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजिया अखी वेख न रजिया बहु रंग तमाशे अखी वेख बहु रंग तमाशे बहु रंग तमाशे अखी वेख न रजिया अखी वेख न रजिया अखी वेख न रजिया। वाहिगुरू जी की फतेह। श्री दरबार साहब का एक होर बड़ा संसार भर विच वादा है
कि ना उत्थे इतना जल होने के बावजूद कभी डड्डू बोलिया है अते इतनियां मछलियां होने के बावजूद कभी बगला नहीं आया। ये ऐसा क्यों है? यही हरमंदर की सिफत है। यही जिस अंदर हरि आ जाएगा उसकी सिफत होएगी कि उसका अंदरला नहीं बोलेगा, टपुसी नहीं मारेगा, डड्डू वांगू छाल मार के कभी इधर उधर नहीं जाएगा, टिकया रहेगा। अते ना उसके सुभाव विच बगले वाला कर्म होएगा। बगले का एक ही कर्म है माड़ा कि बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन ते कुट कुट जीए खाइन। बग्गा देखने नूं बहुत ठीक हुंदा है, चिट्टा है, पर उसकी नजर सिर्फ हुंदी है कि जद मच्छी साह लैन लई जल तो उत्ते आवे उसनूं वो खा जाए। ऐसा नहीं होएगा श्री दरबार साहिब। ना श्री दरबार साहिब, बस 2 मिनट रुक जाओ गुरमुखा, 2 मिनट। ना श्री दरबार साहिब डड्डू बोलिया है अज तक, ना कदी बोलेगा। ना उथे कोई बगला आया है, ना बग्गा बैठ सकता है, ना बगले वाला सुभाष श्री दरबार साहब चल सकता है। दरबार साहब का एक होर बड़ा वादा है जेड़ा बड़ा हैरान करने वाला है। किपलिंग बहुत बड़ा लिखारी होया है, जिन्होंने जरा को अंग्रेजी आउंदी है वो जानते ने कि किपलिंग दियां लिखतां सारा संसार अंग्रेजी जगत शेक्सपीयर तो बाद सिर नवा के पढ़ता है। ये किपलिंग अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर सी, लाहौर का कमिश्नर बनया, फिर जाके प्रीवी कौंसल का मैंबर भी रहा। पाइनियर अखबार है हिंदुस्तान की जो लखनऊ चो निकलती थी उसका लगातार एडिटर भी रहा। इसने वो गल लिखी जिहड़ी तुसी बड़ी बारी सुनी है कि मैं आगरे भी रहा हाँ, अमृतसर भी रहा हाँ, ताजमहल भी डिठा है, हरमंदिर साहब भी डिठा है। दोनों का अंतर बस इतना है, हरमंदिर जिंदगी है, ताजमहल मौत है। शायद यही कारण होवे कि साडे इतिहास विच या दरबार साहब की मर्यादा विच लिख दिता गया है कि श्री दरबार साहब किसी मृतक का अखंड पाठ नहीं हो सकता। कैसा दरबार साहब है? किसी मृतक का अखंड पाठ श्री दरबार साहब नहीं हो सकता। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि जिसने जिंदगी अंदर प्रभु को याद नहीं किया उसका खाता तो बंद हो गया है। श्वास मिले पूंजी नू जे उसने नाम लई नहीं वरत्या तो उसके खाते च किवें कोई दाखिल कर सकेगा? ये श्री हरमंदिर साहब का संसार ते वादा है। होर दसो कई कहते ने नकल कर लगते ने, कई मूर्ख हन, कई सियाणे हन, कई चालाक हन, कई ऐसे लोग तो पिछे सुनिया ना, एक संत अतर सिंह जी होए ने बड़े महापुरुष, उन्होंने किसी बेवकूफ चेले ने उन्होंने स्थान ते ऐलान कर दिता कि असी उसकी समाधि ते दरबार साहब वर्गा बनावांगे। तो तुसा पढ़िया ना कितना असाने खासकर जेड़े प्रबंधक हाँ थोड़ा जिहा जानने आख्या ऐसा जुल्म ना करे जे, तुहानू पता ही नहीं श्री दरबार साहब की है। दरबार साहब ते किसी मृतक का अखंड पाठ नहीं हुंदा ते तुसी किसी मृतक के उत्ते दरबार साहब वर्गी कोई दरबार बना दोगे? रुक गए, मन गए। मेरी यही आप तक बेनती है कि कोई ठेडा किसी को लगे ना उसनू समझा दिया करो। रोज ठेडे लगते हैं, रोज कई चालाक महापुरुषों के चेले बैठे हुए नवे नवे रस्ते साढ़े सामने रख के अपना कार्य पूरा करना चाहते हैं। ये दरबार साहब की सब तो बड़ी महत्ता है ताकि सिख नू ख्याल रहे कि जींदिया मिले सवासां दे राही नाम नू जपना है अते उसनू प्रगट करके संसार तो खुशी खुशी जाना है। दरबार साहब की जो मर्यादा बननी है भाई मनी सिंह जी ने दसी है
गुरु अर्जन पिता ने भाई बनी सिंह जी ने बड़ा बड़ा परोपकार किया, पूरी एक किताब लिख के सानू दे गए। किताब का नाम है दस्तूरे अमल श्री दरबार साहिब, बकलम खुद मणि सिंह ज्ञानी, दस्तखत लिख के चले गए, कभी इसनू बदला ना कोई सके। यही कारण है कि वो दरबार साहब की मर्यादा पिछले 300 या 350 साल तो उसी तरह निभ रही है, अज तक किसी नहीं बदलाई। रणजीत सिंह आ गया, राज आ गया, महंत आ गए, अकाली आ गए, कोई आ जाए, दरबार साहब की मर्यादा बदल नहीं सकती। दरबार साहब की एक मर्यादा हो है, दरबार साहब अंदर बोले सो निहाल का जयकारा नहीं होंगी। हूँ कोई इंसान आखे मैं दरबार साहब की नकल कर लवा, दरबार साहब अंदर बोले सो निहाल का जयकारा होंदा ही नहीं है। ये क्यों नहीं होंदा? ये भाई मणि सिंह जी जानन, जिन्होंने दस्तूरे अमल च लिखा कि कभी भी श्री दरबार साहिब में बोले सो निहाल का जयकारा नहीं होगा। उन्होंने क्यों सोचा? कारण तो कई होंगे, ये सिर्फ असं समझ सकने हैं उन्होंने मन च की सी वो जानन, अते पंथ ने उहदे पूरा पैरा दिता है। हुण तक बोले सो निहाल का जयकारा नहीं होया। आपनू पता है कई बारी सानू आके आखदे भी ने, क्यों नहीं तुसीं जयकारा बोलदे? असीं कहने भाई जे भाई मणि सिंह जी तो वड्डा है तो तेरी गल मन लैंदे आ। भाई मणि सिंह जी ने कहा है कि श्री दरबार साहब विच बोले सो निहाल का जयकारा नहीं होने लगा। कारण एक हो सकता है, ये कोई आखिरी कार जवाब नहीं है। एक कारण इंज प्रतीत होंदा है कि श्री दरबार साहब विच बैठिया कोई आदमी अपना मुंह इतना उच्चा ना कर लवे, मुंह ना खोल लवे, सारे टिक्के सहज ना रहन। एक जयकारा छड़ेगा, कोई दूजा छड़ देगा, दूजा छड़ेगा, कोई तीसरा छड़ देगा, ऐसा ना होवे श्री दरबार साहब। दूसरा कारण साइंटिफिक भी हो सकता है, उसनों अंग्रेजी च कहंदे ने सोनिक बीम्स। जिस वेले सारे गज के बोलते हैं, ये हुण साबित हो गया है। खासकर जर्मनी अंदर एक पुराना गिरजा सी बॉन अंदर, ਉਹਦੇ एक बड़ा बड़ा टल वजे लग्या सी। कहंदे ने जेड़ा आवे जोरदार टल खड़काए तो होया कि सोनिक बीम जिहड़ियां आवाज़ां दी निकलदी हुई एक वड्डी लगातार आवाज़ है, आसमान विच भी त्रेड़ पा देंदी है, गिरजे दे गुंबद विच भी त्रेड़ पा के चली गई। ऐसा हो सकता है उन्हां दे मन विच आए तो बड़ी पावन स्थान है। ऐसा ना होवे कि बोल बोल के त्रेड़ा पा दें, जेड़ा आम तौर ते तुसी देखिया है। कारण कुछ होवे, मर्यादा प्रस्ते कौम है, बोले सो निहाल दा जयकारा नहीं होया। फिर उन्होंने मर्यादा बनाई कि कहंदे ने दरबार साहब वांगू इत्थे करो। कई तुहाडे च आउणगे उठ के कहंदे ने दरबार साहब वांगू होना चाहिए। दरबार साहब विच भाई मणि सिंह जी ने एक गल निभाई ते निभ रही है। 6 प्रबंधक दरबार साहब दे वखरे होणगे। पहला ग्रंथी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा कीर्तनिया, चौथा अरदासिया अते कड़ा प्रसाद बनाने वाला। आप हैरान होवोगे, ज्ञानी अर्जन सिंह जी तुहानू दसते ही रहेंगे, दसते भी हैं कि कड़ा प्रसाद बनाने वाले को लंगर नहीं बनवा सकते। ये हुण भाई मणि सिंह जी जान कि कितनी महिमा है कड़ा प्रसाद दी, या असी जेड़े हुण तक निभा रहे हैं, जिन्हां दे कोल भावें असी अनपढ़ हाँ, भावें असी मूर्ख हाँ, भावें असी 21वीं सदी जान वाले हैं, सानू कुछ कोई आके। भाई मणि सिंह जी ने कहा अरदासिया वखरा होना चाहिए है, ग्रंथी अलहदा होना चाहिए है, अते कड़ा प्रसाद बनाने वाला अलग चाहिए। अते चौथे हन चरागिए, टोपिए, चादर बिछाने वाले, दीवान सजाने वाले, ताकि दरबार साहब के अंदर किसी वेले भी ऐसा ना हो जाए चिराग बुझ जाए, ऐसा ना हो जाए